अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सांसदों को किया संबोधित। पाचेको ने कोरोना से निपटने के भारत के प्रयासों की सराहना की। कहा, वैक्सीन मैत्री अभियान से दुनिया के तमाम देशों की मदद कर रहा है भारत। चुनावी राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार में बढ़ाई रफ्तार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बंगाल में चुनावी रैलियां। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी बांकुरा में करेंगी चुनावी रैली को संबोधित। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में। सीरीज में दोनों ही टीमें अब तक 1-1 से बराबरी पर। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे सीरीज के बाकी मैच। बीसीसीआई और जीसीए ने लिया फैसला। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए अलग बैंक कायम करने का फैसला किया है। बैंक की शुरुआती पूंजी 20,000 करोड़ रुपए होगी। If you kindly have a look at the public sector enterprise policy which we have come out with and identified those core sectors in which the presence of public sector enterprises will still continue, even financial sector is in it. So, to immediately, quickly conclude saying, oh, every bank is going to be sold off, is not right. And even whether it is banks or any other privatization, I want to take this opportunity to tell through you, the media, that the interest of the workers, interest of those who have put in services over the decades will absolutely be protected. Whether it is their salaries, whether it is their scale, whether it is their pension, it will all be taken care of. And above all, the first premise that I would like to put before you is even when we speak of privatization or disinvestment, we recognize that each one of those units perform for the economy. So if there is a coal unit or a thermal unit, राहुल गांधी के बैंक प्राइवेटाइजेशन के आरोपों पर जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार के समय में, यानी कि कांग्रेस की सरकार के समय में अनेक घोटाले हुए हैं। Privatizing taxpayers' money was what UPA government did, and probably even privatizing taxpayers' money for one family's betterment. So privatizing is only that. And second, nationalizing loss, did he say? Today public sector banks are loss making and prompt corrective actions are bringing them out because of the telephone banking which happened during his time. His daddy would have probably nationalized the banks, but nationalizing of loss in the banks was during UPA's time. And I would want to add one more. Nationalizing corruption is what they did. So nationalizing corruption and privatizing taxpayers' money for the betterment of one family is all that Rahul Gandhi will have to take as a reply for that tweet which probably some outsourced fellow in his team is feeding him with. I think there should be some more intense homework done by Rahul Gandhi before he even starts speaking and throwing these kind of things using a spit and run technique. Stand there. Be ready for a discussion. You raise your points, we'll also answer you. Not throw allegations and go away. और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि बुनियादी ढांचे पर विकास के लिए सबसे ज़्यादा फोकस भी केंद्र सरकार का रहा, वो दिखता भी है ज़मीनी हकीकत के रूप में। अब जबकि अलग से केंद्रीय बुनियादी परियोजनाओं के लिए एक अलग बैंक की स्थापना, कितना महत्वपूर्ण निर्णय और क्या क्या कुछ इस बैंक के स्ट्रक्चर, या फिर जैसे कहा गया कि 20,000 करोड़ रुपए शुरुआती पूंजी होगी, क्या कुछ स्वरूप होगा?
जी बिल्कुल, एक बोर्ड बनाया जाएगा और बोर्ड ये तय करेगा कि कहाँ से इस बैंक को पूंजी मिलेगी। वो पेंशन फंड होगा या तमाम वो फंड होंगे जहाँ से बैंक के लिए पूंजी जुटाई जा सकेगी, और बॉन्ड मार्केट भी इस पर एक मजबूती आएगी उसमें। और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात को लेकर जताई जा रही थी कि जब तेज आर्थिक विकास में तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जिनको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, और ऐसे में कई परियोजनाओं को फंड की ज़रूरत है और उनको लंबे समय की फ़ंड की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो आम बैंक होते हैं वो ये नहीं चाहते कि काफ़ी लंबे समय तक कोई उनकी पूंजी रुकी रहे। तो ऐसे में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फंड करने के लिए विशेष बैंक की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जो इन परियोजनाओं को फंड करे और उसे एक तरह से देखें तो लंबे समय में निवेश के लिए वो हो। तो इस तरह के बैंक की ज़रूरत न केवल लंबे समय से महसूस की जा रही थी, बल्कि कई प्रपत्र में RBI के इसका जिक्र भी किया गया था। हम जानते हैं कि 2019 जून जुलाई में जो बजट आया था उसमें इस बात का ऐलान भी किया गया था कि एक विशेष बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फंड करने के लिए लाया जाएगा और उससे संबंधित बिल भी आएगा। आज उस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, यानी इस बैंक का गठन का रास्ता साफ हो गया है और 20,000 करोड़ की शुरुआती पूंजी भी होगी, ये भी स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है। तो यानी आने वाले समय में हम देखेंगे कि तमाम ऐसे बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनको फंड की ज़रूरत होती थी, उन्हें दिक्कतें उसके लिए सामना करना पड़ता था, उनकी राह थोड़ी सी आसान होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विकास के लिहाज से देश में, और जिसका फ़ायदा देश की आर्थिक विकास को मिलेगा और अंततः उससे विकास दर में तेजी आएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरी बात हम जानते हैं कि बैंकों के निजीकरण और इससे जुड़े जो सवाल एक पत्रकार ने पूछा और राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट किया था, उसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम बात बताई और ये कहा कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को लेकर जो एक नीतिगत फैसला हुआ है किस 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 सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की भूमिका होगी, उसमें जो वित्तीय सेक्टर है, जो वित्तीय क्षेत्र है, वो भी शामिल है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो अगर ये कहता है कि सारे बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक सेक्टर बैंक की भूमिका रहेगी। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा कर रहे हैं, कुछ ठीक काम कर रहे हैं, और ऐसे में जब किसी सेक्टर में, चाहे वो बैंक हो या किसी अन्य सेक्टर में, निजीकरण की ओर आगे बढ़ा जाएगा तो जो कर्मचारी हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। तो यानी जो एक तरह से कर्मचारी संगठन या फिर कुछ चिंताएं जताई जा रही थी उनको दूर करने की कोशिश आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का सवाल है, ये स्पष्ट है कि वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर की भूमिका बनी रहेगी। तो ये बहुत साफ है कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होने जा रहा और सरकार को बड़े बैंकों की जरूरत है, इसीलिए विलय की प्रक्रिया पर कई बैंकों के आगे बढ़ा गया है आकांक्षी भारत के सपने को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है सुनी और ये कहा है कि किस तरह से यूपीए के जमाने में दरअसल टेलीफोन बैंकिंग की जाती थी, यानी एक दबाव डाला जाता था ऊपर के स्तर से, जिससे संकेत ये है कि हाँ कई गलत कर्जे बांटे गए, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में तमाम बैंकों को घाटा झेलना पड़ा, जिसकी सुधार के काम अब सरकार कर रही है, जिसको रिकैपिटलाइज किया गया और बैंकों की सेहत सुधारने के लिए कई कदम अब मौजूदा सरकार उठा रही है, जबकि इसकी दोषी, इस बैंकों के घाटों के दोषी यूपीए सरकार के समय की नीतियां थी और उस वक्त जो टेलीफोन बैंकिंग होती थी उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो एक करारा निशाना भी साधा है, जवाब भी दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के ट्वीट का। जी शैलेंद्र, जब इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है तो उम्मीद ये करेंगे, सत्र भी चल रहा है, ये सत्र के दौरान पेश भी होगा और कानून का शक्ल लेगा। देखिए, ये देखना होगा कि क्या इसी सत्र में इस विधेयक को सरकार पेश करेगी। हालांकि आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम एक सदन में जरूर इसी सत्र में सरकार इस बिल को हो सकता है कि पेश करे और निश्चित तौर पर इस पर आगे बढ़ने की कोशिश होगी। और जब पूरे तौर पर देखें तो क्या ढांचा होगा, इसकी फंडिंग पैटर्न क्या होगा, बोर्ड में मेंबर कौन कौन से होंगे, ये विस्तार से जब विधेयक आएगा संसद में तभी इस पर विस्तार से आगे जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जो एक थीम है जिसको लेकर ये संकेत दिए गए थे और ये कहा गया था बजट में कि इस तरह के एक बैंक की ज़रूरत है जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लंबे समय के लिए फंड मुहैया करा पाए,
उसको लेकर आज मंजूरी दे दी गई है, उससे जुड़े बिल को मंजूरी दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने कभी भी राजद्रोह के मामलों पर अलग आंकड़े नहीं रखे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से एक अलग देशद्रोह का डेटा देश के सामने रखा गया। सेडेशन केस के बारे में जब कांग्रेस सरकार थी, अलग कोई डाटा नहीं रखे हैं। वो पूरा जो आईपीसी क्राइम्स रिकॉर्ड्स रखते हैं उसमें ही मिलाकर रखे थे। हम गर्व के साथ बताना चाहते हैं, मोदी सरकार आने के बाद जो सेडिशन केसेस का अलग डाटा 14 के बाद हम ही अलग डाटा देश के सामने रख रहे। उससे पहले कोई डाटा नहीं रखे थे कांग्रेस पार्टी, छुप छुपाकर आईपीसी में ही रखते थे आप लोग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में रेलवे के निजीकरण को लेकर लगाई जा रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे का कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा और यह हमेशा भारत सरकार के अधीन रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्य के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले? केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2019-2020 के लिए एमपी लेड फंड वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं और ये राशि जिलों में भेज दी गई है। वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि कोरोना काल की वजह से 2020-2021 और 2021 और 2022 में कोई नया एमपी लेड फंड नहीं दिया जाएगा। 1920, the year before the corona thing happened, every commitment which has been made by honorable MPs will be fulfilled. However, as was the instruction or as was the notification made for the year 2021 and for the year 21-22, no new commitments on MP lads will be entertained. That rule remains. With that rule remaining in place for the year before 2020, that is 1920, every commitment will be fluid and money has been cleared. Please, suniye, kam se kam, that was also a concern. Money has been cleared from Ministry of Finance. MOSPI, the Statistics and Program Implementation Ministry, has also assured me that they will immediately send the money to the districts. Honorable MPs can please approach their district. आयुर्वेद से स्नातकोत्तर करने वाले डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत देने वाले आदेश को लेकर राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्जरी और आयुर्वेद के बीच रिश्ता पुराना है और इसे लेकर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस जो दिया है सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं उसके बारे में तो यहाँ टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन सर्जरी के बारे में लेकर के कोई आशंका नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में आयुर्वेद का जो अष्टांग आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है ये तो कोई नए तो नहीं है और सर्जरी तो इसका हिस्सा है। हमारे जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट जो 2020 में निकला है उसमें जो प्रिस्क्राइब किया है, क्लियरली डिफाइन किया गया है कि वो सर्जरी का प्रोसीड्योर क्या है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई विवाद होना चाहिए। कोरोना टीकाकरण के मामले में देश रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में 30 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। देश भर में आज सुबह 8 बजे तक 3,29,47,432 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 15 दिन के भीतर 60 साल से अधिक उम्र के 1 करोड़ देशवासियों का टीकाकरण हुआ है। कोविड का टीकाकरण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बीते 24 घंटे में 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीनेशन एम्पावर ग्रुप के प्रमुख RS शर्मा ने कहा कि अब तक 2.5 करोड़ लोगों ने कोविन वेबसाइट पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने कहा कि लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचक भी अब दूर हो रही है। हमारा काफ़ी नंबर्स बढ़ना चालू हुए हैं। अब कुछ दिनों 20 लाख से ऊपर हमारा प्रतिदिन का वैक्सीनेशन का फिगर हो गया है। तो ये बहुत अच्छा समाचार है, एक प्रकार से बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। साथ ही साथ लोगों की जो हिचक शुरुआत में देखने को आ रही थी, वो हिचक अब ख़त्म हो रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, तो ये दूसरी बात है। जहाँ तक रही सॉफ्टवेयर की बात, तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। करीब 2-2.5 करोड़ लोग इस सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर हो चुके हैं अब तक, जो अपने आप में एक सबूत है कि सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,10,27,543 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.65% हो चुकी है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 20,191 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 3,29,47,432 लोगों का टीकाकरण हुआ है। केंद्र सरकार ने कोविड की एक दूसरी लहर के चलते महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकार को लिखे एक पत्र में कोविड नियंत्रण रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में हर रोज बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। हाल के दिनों में अनलॉक की प्रक्रिया जो चल रही थी, इन आदेशों के बाद अब उस पर सख्ती बढ़ेगी। नए आदेशों के तहत होटल, रेस्टोरेंट, सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। सियासी, सामाजिक या धार्मिक जमावड़े की इजाज़त नहीं होगी। शादियों में 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में भी लोग शामिल हो सकते हैं, इनकी संख्या 20 होगी। हेल्थ सर्विसेज और दूसरी अनिवार्य सेवाओं के ऑफिसेज के अलावा बाकी दूसरे ऑफिसेज 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। जगह की क्षमता के हिसाब से धार्मिक जगहों पर हर घंटे के लिहाज से श्रद्धालुओं को आने की इजाज़त दी जाएगी। और महाराष्ट्र के हालात पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर शेलार। शिशिर, अगर देखें तो महाराष्ट्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है। नए दिशा निर्देश भी केंद्र सरकार की अपेक्षा पर जारी किए गए हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश है और साथ ही साथ कितना आपको दिखता है कि उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन भी हो रहा है? बिल्कुल अश्विनी, देखिए महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आंकड़े जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, और जिस दिशा निर्देश की हम बात कर रहे हैं, हालांकि जब महाराष्ट्र में इससे पहले जब सबसे ज्यादा आंकड़े पाया करते थे, जब महाराष्ट्र कोविड को लेकर पीक में था, उस वक्त भी इस प्रकार के दिशा निर्देश महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए थे। लेकिन जब उसके बाद हमने देखा कि आंकड़ों में जो है नीचे गिरने लगे, उसके बाद कहीं ना कहीं एक फ्रीडम थोड़ा सरकार ने दिया था। चूंकि आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं तो सरकार ने फिर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है लोगों के सामने रखे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इनका पालन सख्ती से किया जाए। हालांकि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आंकड़ा अगर देखें महाराष्ट्र में दिन अगर हर रोज अगर देखा जाए, एवरेज देखा जाए तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार केसेस हर रोज मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन महाराष्ट्र के लिए है। हालांकि इससे पहले जो आंकड़े थे ये महाराष्ट्र के टियर 1 सिटी यानी शहरों की और ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से ये आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। और इसीलिए फिर चाहे विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो, यहाँ पर जो है आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इसको कहीं ना कहीं कंटेन करने की कोशिश कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी, उसमें साफ कहा गया है कि हालांकि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र के पास है वो अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र को तैयार होना पड़ेगा वर्स्ट केस सिनारियो के लिए। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की,
तो इन तीनों चीज़ों पर महाराष्ट्र को ध्यान देना होगा। ट्रीटमेंट बढ़ानी होगी, साथ ही साथ जो टेस्टिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, वो तकरीबन 20 से 30 लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा हर एक पॉजिटिव केस के पीछे, ये भी उसमें कहा गया है। और साथ ही साथ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए भी चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर अन्य सुविधा वो भी मुहैया करानी होगी, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के पास अगर देखा जाए तो उपलब्ध है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसको बढ़ाने की भी यहाँ पर जो है गुंजाइश हो सकती है, सरकार ने भी कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर केंद्र सरकार ने यह भी कही है कि जिस प्रकार से होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स इस वक्त है उनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि होम आइसोलेशन में जिस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन जो एसओपी है वो सेट किए हुए सरकार ने, उसी तहत जो है जो भी पॉजिटिव केसेस होम आइसोलेशन में होंगे उनको जो है उसके तहत ट्रीट करना होगा। क्योंकि होम आइसोलेशन में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं और इससे कहीं ना कहीं ये कोरोना फैलने की संभावना है, और इसीलिए ये सभी दिशा निर्देश जो है केंद्र सरकार द्वारा भी राज्य सरकार को दिए गए। हालांकि राज्य सरकार ने हमने देखा कल एक नई एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया कि धार्मिक स्थल और साथ ही साथ हम बात करें सोशल जो गैदरिंग्स है उसको पूरी तरह से बैन किया गया, लेकिन लोगों को ये भी कहा गया है, वो हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, साथ ही साथ मास्क का भी उपयोग करें, जो कि कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी कारगर है। वही दूसरी ओर अगर बात करें हम अश्विन, तो वैक्सीनेशन की अगर ड्राइव की हम बात करें तो वैक्सीनेशन ड्राइव भी महाराष्ट्र में पूरे जोर से है। हालांकि कई लोगों को कोविड का जो दूसरा टीका है वो भी मिल चुका है। जहाँ तक बात करें महाराष्ट्र के जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है, औरंगाबाद हुआ, फिर हम बात करें नागपुर, अमरावती, इन इलाकों में भी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी जोर से शुरू है। और ये भी कहा जा रहा है कि दिन ब दिन हालांकि ये नंबर्स जो है भले बढ़ रहे हो, लेकिन वैक्सीनेशन की तादाद भी महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। जी शिशिर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि मुंबई के हालात अलग हैं, महाराष्ट्र का अगर पूरा सिनेरियो देखें तो देश में सबसे ज़्यादा वहाँ पर संक्रमण के मामले हैं। पुणे हुआ, औरंगाबाद हुआ, दूसरे अन्य जो शहर हैं वहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं? जो आप ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, इन सब सुविधाओं की स्थिति वहाँ कैसे है? और एक और सवाल कि लोगों का टीकाकरण के प्रति रुझान कितना है? जहाँ तक बात करें अन्य शहरों की अश्विनी, हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है उनको प्रोएक्टिव होके जो इससे पहले एसओपीज है वो रीइंस्टेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जाते हैं तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बनानी पड़ेगी। एक पॉजिटिव पेशेंट के पीछे तकरीबन 20 से 30 लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा। ये जरूरत होगी इस वक्त, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, और यही बात जो है हम इस वक्त देख रहे हैं। अमूमन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है वो अब डिसीजन ले रहे हैं, फिर चाहे नाइट कर्फ्यू की हम बात करें, फिर लॉकडाउन की हम बात करें, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की हम बात करें। क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन अब तक लागू नहीं किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहा है कि जहां पर जरूरत हो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और इसी का नतीजा हमने देखा कि लातूर, औरंगाबाद, अमरावती जैसे इलाकों में हमने देखा कि नाइट कर्फ्यू कुछ जगह लगा गया है, साथ ही साथ कुछ जगह पर कुछ दिनों का वीकेंड लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं वो भी लगाया गया है, क्योंकि ये हम अमूमन देख पा रहे हैं हर इन सभी जिलों में। दूसरी बात आपने कही कि जिस प्रकार से लोगों के प्रति अगर हम बात करें तो ये आंकड़े साफ बता देते हैं कि किस प्रकार से लोग भी काफ़ी सजग है इसको लेकर। हालांकि शुरुआत करें मुंबई से, मुंबई में तो हालांकि वैक्सीनेशन के अगर दर देखें, परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ मुंबई के अलावा बाकी अन्य हम डिस्ट्रिक्ट्स देखें, जो दूर दराज के इलाके हैं, गढ़चिरौली, चंद्रपुर है, या फिर हम बात करें धुले, नंदुरबार जैसे इलाके हैं जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है वैक्सीनेशन की रफ्तार इस वक्त ज़्यादा है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके अलग अलग जगह पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए, चूँकि लोगों के लिए वो काफ़ी आसान हो सके। कई शहरों में जो है आंशिक लॉकडाउन या फिर पूरी तरीके से लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है। अगर नागपुर की बात करें या फिर अन्य शहरों की बात करें, कहीं पर ये कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी रेस्टोरेंट में। जो ये दिशा निर्देश हैं जिसको कहते हैं कि शब्दशाह या लेटर इन स्पिरिट, वो कितने पालन होते दिख रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये बढ़ते जाना, वहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति में स्थितियाँ काबू में ना होना, कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा करता है कि जो एसओपीज़ हैं, जो आदर्श स्थिति है, जो अपेक्षाएं हैं, क्या वो उतने मुस्तैदी से पालन हो रहा है उनका? देखिए, इसका आंकड़ा बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में मार्शल्स अपॉइंट किए गए हैं बीएमसी द्वारा। ये बीएमसी द्वारा अपॉइंट किए गए मार्शल्स रास्तों पर जो लोग घूम रहे हैं उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं, क्या वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। और आंकड़ा अगर देखें, हालांकि इन मार्शल के जरिए जो लोग इन सभी रूल्स का जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको भी जो है फाइन कर रहे हैं, उनको पेनल्टी भरनी पड़ रही है। और ये पेनल्टी का आंकड़ा अगर देखा जाए तो करोड़ों में जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग भी कहीं ना कहीं इस वक्त जो है जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे, और इसी का नतीजा है कि जो केसेस है, जो नंबर ऑफ केसेस वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
चूंकि हमने जिस प्रकार से देखा कि पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में केसेस कम हो चुके थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ढिलाई हम देख पा रहे थे लोगों में भी और साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रशासन के तौर से भी। लेकिन चूंकि अब फिर से केसेस बढ़ रहे, प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि अब ये इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो सरकार के पास कोई दूसरा माध्यम नहीं होगा लॉकडाउन करने के अलावा। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं सूचना महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी दी है कि वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे, लेकिन जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं और अगर लोग जो है इन रूल्स का अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होगा। शिशिर, मुंबई की जो लोकल ट्रेनें हैं वो तो अगर एक बार उसमें कोई चढ़ जाए और यात्रा कर ले और कोई भी कोरोना पॉजिटिव अगर उसमें है तो हालात क्या हो सकते हैं हर कोई जानता है। मुंबई की जीवन रेखा भी है, रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या इन सब पर भी किसी तरीके के नए दिशा निर्देश कि कैसे लोकल ट्रेनों का संचालन हो या फिर कैसे इन सब स्थितियों को भी काबू में किया जा सके कि जीवन रेखा भी चलती रहे, जीवन भी बचा रहे? बिल्कुल, देखिए आम मुंबई वासियों के लिए मुंबई की लोकल एक जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन पिछले यानी मार्च 2020 से लेकर अगर अब तक हम देखें जनवरी तक भी तो ये लोकल सेवा जो है आम लोगों के लिए खुली नहीं थी। हालांकि पार्शियल रिलीफ जरूर दिया गया था, लोगों को कहा गया था कि एक तयशुदा वक्त में ही जो लोकल से जो है ट्रैवल कर सकते हैं और इसीलिए रास्तों पर जो है अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके हम बसेस की हम बात करें वो भी सरकार ने जो उपलब्ध कराई दी थी। हालांकि इसके बावजूद हमने जिस प्रकार से देखा है कि लोगों जो पूरी रश होती है, रश आवर में अगर देखा जाए तो लोकल ट्रेन में आज भी भीड़ है, रास्ते पे अगर देखा जाए रास्ते में बसों में आज भी भीड़ है, क्योंकि लोग जो है अब अपने काम की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए कल के जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए उसमें ये साफ उल्लेख उन्होंने किया है कि अगर हो सके तो जो प्राइवेट संस्थान है या फिर अन्य बाकी संस्थान हो सके तो वहां पर 50% वर्क फोर्स ही जो है ऑफिस में बुलाया जाए, बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी जाए। ये कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है, क्योंकि ये जो पीक आवर्स में जो भीड़ बढ़ती है उसको कम करने की कोशिश सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से लोकल ट्रेन की हम बात कर रहे थे, लोकल ट्रेन आज भी अगर देखे जाए जो शेड्यूल लोकल ट्रेन का जो ट्रेन पहले मुंबई में दौड़ती थी उसी शेड्यूल से लोकल ट्रेन दौड़ रही है। हालांकि उसमें अगर देखा जाए भीड़ जरूर थोड़ी कम है, लेकिन आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन इन लोकल ट्रेन में नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीनी हकीकत बताने के लिए शिशिर शेलार मुंबई से, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले के मद्देनजर 17 मार्च से प्रमुख शहरों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। ये कर्फ्यू 31 मार्च तक लागू रहेगा। हमारे संवाददाता सुमन हमसे जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। 17 मार्च से 31 मार्च तक हमारी संवाददाता हैं, सुमन इनका नाम है, ये जुड़ चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसे हालात हैं अभी फिलहाल, कैसे हालात हैं वहाँ पर अहमदाबाद में और 4 अन्य शहरों की अगर बात करें जहाँ पर नाइट कर्फ्यू की स्थिति है, क्या कुछ कोविड से बचाव के उपाय ऐसे में तब जबकि अहमदाबाद का जो T20 मैच है वो भी बगैर दर्शकों के खेले जाने का फैसला किया गया? जी बिल्कुल, अगर बीते 10 दिनों की बात की जाए गुजरात में, तो इन बीते 10 दिनों में गुजरात में लगातार कोरोना के मामलों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। पिछले इन दिनों में लगातार गुजरात में 500 से अधिक रोजाना केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि गुजरात के 4 महानगरों में सूरत, वडोदरा, राजकोट और अहमदाबाद में जो है वो कल 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है वो नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 16 मार्च तक भी इन 4 महानगरों में जो है वो अभी भी नाइट कर्फ्यू जो है वो यथावत था, जिसका समय रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक था। पर अब जो है राज्य सरकार ने आज फैसला लिया है, जो कल से इसका समय जो है वो रात 10 से लगाकर सुबह 6 बजे तक कर दिया जाएगा। अगर इन 4 महानगरों की बात की जाए तो ये वो महानगर हैं जहां इन चारों शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तो वही सूरत और अहमदाबाद में कल की अगर बात की जाए तो सूरत और अहमदाबाद में ये मामले 200 को पार कर चुके हैं। तो वही वडोदरा और राजकोट में ये मामले जो है वो 100 से अधिक जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इन महानगरों में नाइट कर्फ्यू लगाना जो है वो बहुत आवश्यक था, तो सरकार ने आज ये फैसला लिया है। तो वहीं अगर बात की जाए गुजरात में कोरोना केसेस की, तो लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो ही रही है और ऐसे में अभी जो है वो लगभग 4700 के करीब गुजरात में जो है वो एक्टिव केसेस जो है वो शुरू हैं। तो बात की जो आज गुजरात के उप मुख्यमंत्री है नितिन पटेल, उन्होंने आज एक मीटिंग की और उस
उसमें ये बताया गया कि कल से जो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इन 4 महानगरों के अलावा जो अन्य शहर हैं, उन शहरों में किस शहर में कब तक किस समय के लिए नाइट कर्फ्यू या कौन सा कर्फ्यू लगाया जाएगा, इसकी जानकारी जो है वो शाम तक दी जाएगी। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कई शहरों के जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उनके साथ भी चर्चा की और उन्हें भी अपने स्तर पर जो है वो फैसले लेने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि वो जितना हो सके अगर आवश्यक है तो ही घरों से बाहर निकले और सबसे जरूरी बात कि कोरोना के पूरे नियमों का पालन करें, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से जो ये लगातार गुजरात में मामले बढ़े हैं, इसका एक कारण ये माना जा रहा है कि लोगों में लापरवाही जो है वो बढ़ गई है। सोशल डिस्टेंस जो है, जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं या फिर जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे में लोग ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं और ना ही मास्क जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वही अगर मैं गुजरात में कोविड के वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करूं तो अब तक गुजरात में जो है वो 20 लाख लोगों को कोविड का पहला वैक्सीन डोज दिया जा चुका है, तो वही 5 लाख लोगों को जो है वो दूसरा डोज दिया जा चुका है और करीब 90,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हें भी कोविड का वैक्सीन जो है वो दिया जा चुका है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी जोरों शोरों से चालू है। ऐसे में लगातार कोरोना के मामलों का बढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब बढ़ते केसों को देखकर वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और कोरोना के सभी नियमों का पालन करेंगे। जी, ये तो हुई कोरोना से बचने के उपाय। टीकाकरण की क्या स्थिति है? टीकाकरण के प्रति लोगों के अपने रुझान कैसे हैं, प्लस टीकाकरण की गति कैसी है, प्रगति कैसी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात में जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो जोरों शोरों से चालू है। ऐसे में लोगों का जो रिस्पांस देखा जाए तो वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। सेकेंड जो डोज स्टार्ट हो गया है उसमें भी लोग बड़े तरीके से जा रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। और जागृति की बात की जाए तो लोगों में टीकाकरण के प्रति जागृति हो तो ऐसे में भी कई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो है वो वैक्सीनेशन डे है, तो इस वैक्सीनेशन डे के मौके पर भी राज्य में सभी लोग जो है वैक्सीन के प्रति जागरूक हो। ऐसे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोग जो है वो बढ़ चढ़कर आगे से होकर वैक्सीन लगा रहे हैं। और इसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो वैक्सीन, हम शुक्रिया कहेंगे सुमन वरोड़ा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, सावधानी और सचेत होने का विषय है। मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा जिसमें कुछ और फैसले संभावित हैं ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। कोरोना के प्रकरण जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सावधानी और सचेत होने का विषय है और मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा, उसमें कुछ और फैसले संभावित है ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। और आम जन से भी मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानियां रखें। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ वर्चुअल सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, शिक्षा और नवोन्मेष,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत संबंध और सहयोग है। दोनों ही देश फिलहाल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग से क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की ओर हैं। दोनों नेता इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने पर विचार विमर्श करेंगे। भारत की 7 दिवसीय यात्रा पर आए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था IPU के अध्यक्ष दुआर्ते पाचेको ने संसद के केंद्रीय भवन में उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री और अनेक सांसद शामिल रहे। IPU के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच 500 साल से ज्यादा पुराना संबंध है। भारत और पुर्तगाल सिर्फ मित्र ही नहीं, भाई भी हैं। Thank you for your support acrossing the election to the presidency of IPU. You have a friend, a special friend in IPU, ready to work side by side with you, with your parliament and with India. Portugal and India, with more than 500 years old of relations. So we know all each other so better that I may say we are not just friends, we are brothers in blood. और IPU अध्यक्ष ने भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अपनी वैक्सीन के जरिए दुनिया भर के लोगों की मदद कर रहा है। India is one example to the world. Because with your courage, you take very hard measures, but also because you don't look just for you. Before the vaccine and after the vaccine, you give concrete help to so many nations of our world. Thank you so much for that. वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोकतांत्रिक देशों की संसद को एक दूसरे की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। मेरे विचार में किसी देश की संसद को अन्य लोकतांत्रिक देश की संसद द्वारा लिए गए सर्वप्रमुख निर्णयों या संसद से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहिए। सभी लोकतांत्रिक देशों की संसदों को एक दूसरे की मर्यादा का परस्पर सम्मान करना चाहिए। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया। इसके अलावा JP नड्डा आज बंगाल के कोटुलपुर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। ये यात्रा राज्य के 18 जिलों के 157 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। वहीं दूसरी ओर बंगाल में जारी सियासी घमासान पर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज बांकुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव होने हैं। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा, 29 अप्रैल को आखिरी चरण के वोट डाले जाएंगे और 2 मई को वोटों की गिनती होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा व्यक्त किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर अपनी चोट पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है।
और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल के लोगों की पीड़ा ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी और अराजकता लंबे समय तक अब नहीं चलेगी। ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग राज्य में रुक नहीं रहा है। इस सभा में भी जनता को आने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज ममता दीदी भी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था जगह जगह से, हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने से रोका जा रहा था। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए चेन्नई में अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने और स्टार्टअप और नए उद्यमियों को टैक्स में छूट देने का वादा किया है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज राजस्थान में फोन टैपिंग मामले पर कांग्रेस से तीखे सवाल किए। राज्यवर्धन राठौर ने पूछा कि कांग्रेस सरकार बार बार बोल रही है कि 69A और टेलीग्राफ एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और राजस्थान में बैठी उन्हीं की कांग्रेस सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। विधानसभा में सरकार से एक लिखित प्रश्न पूछे जाने पर राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि फोन टैपिंग हुई थी। ये मामला जो फोन टैपिंग का है, ये लगातार हम उठाएंगे इस मामले को कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी तो ना करके आप जनता का फोन टैपिंग कर रहे हो। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है। और जासूसी का लक्ष्य क्या है? यह नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट और 69A, जिसकी बार बार कांग्रेस चर्चा करती रहती है और लोगों को ऐसा भ्रमित करती है कि यह बीजेपी की सरकार है जो तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आपके सामने आ गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर पिछले कुछ महीने, कुछ सालों के अंदर किसी सरकार ने अगर तंत्रों का गलत इस्तेमाल करा और उसे असेंबली के अंदर स्वीकार करना पड़ा, तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बढ़ते हुए अपराध पर चिंता जताई। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को न रोक पाने के लिए राज्य सरकार की विफलता पर कांग्रेस को घेरा। राजस्थान नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर। टोटल 2019 में जो देश भर में जो घटनाएं हुई वो तकरीबन 32,000, जिसमें से राजस्थान के अंदर 6,000। नंबर 1 राज्य। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये सारी घटनाएं नजर नहीं आती? क्या कांग्रेस के किसी भी नेता को, कांग्रेस की किसी भी पार्टी को उनकी जो छोटी सोच के बियॉन्ड जो राजनीति होती है वो नजर नहीं आती? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सीरियाई संघर्ष के मुद्दे पर कहा कि भारत का मानना है कि सीरियाई संघर्ष का सैन्य उपायों के द्वारा समाधान नहीं हो सकता। तिरुमूर्ति ने कहा कि हमने मानवीय सहायता और मानव संसाधन विकास के माध्यम से सीरिया के पुनर्गठन और सामान्य स्थिति बहाल करने में योगदान दिया है।
टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, हम सीरिया के लोगों के समर्थन में उनके मदद करने की पहल को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद ये उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। बोरिस जॉनसन का भारत यात्रा का मकसद इस क्षेत्र में ब्रिटेन के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कल इसकी जानकारी दी। जॉनसन ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को गति देने के प्रयासों के तहत जनवरी में भारत की यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन ब्रिटेन में कोविड-19 संक्रमण में आए उछाल के बाद उन्हें यह यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। जॉनसन सरकार ने कहा है कि आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में झुकाव बढ़ाने पर फोकस रहेगा। इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस वाहनों के क्षेत्र में शोध के लिए आईआईटी दिल्ली ने एमजी मोटर इंडिया के साथ करार किया है। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी और एमजी मोटर इंडिया के बीच आज इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी राम गोपाल राव ने इस मौके पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में शोध को आईआईटी दिल्ली काफी महत्व देता है। आईआईटी दिल्ली में सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी की स्थापना बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और ऑटोनॉमस वाहन के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के मकसद से किया गया है। तो आईआईटी दिल्ली में हम एक सेंटर स्टार्ट किया है, सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी करके। उसमें 20 फैकल्टी मेंबर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। उसमें हम फैकल्टी रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं। कम से कम 200 पीएचडी स्टूडेंट्स भी इसके ऊपर काम करने वाला है। इससे फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ क्या हो सकता है, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये पर्टिकुलरली एमजी मोटर्स के साथ हम ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर काम करने वाला है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम ऑटोनोमस व्हीकल के लिए कन्वर्ट करके, ड्राइवरलेस व्हीकल के लिए कन्वर्ट करके दैट विल ऑपरेट ऑन द कैंपस। आज हम लोगों ने एक नए लेवल पे गए रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पर हमने ZS EV गाड़ी को हम एक आईआईटी दिल्ली को दे रहे हैं। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ गाड़ी हम लॉन्च ही नहीं करें, बट यहाँ पर इसकी नॉलेज को जितना स्प्रेड कर सकते हैं, इस टॉपिक पे और रिसर्च कर सकते हैं, बैटरी पे कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑटोनोमस लेवल का रिसर्च कर सकते हैं। तो वो सारा हम साथ मिल के करें। और जितना और स्टार्टअप्स, आईआईटी दिल्ली जो है स्टार्टअप्स के साथ भी काफ़ी काम करता है, तो उनका भी इस गाड़ी पे जितना भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो लोग, या जितना और लर्न कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो स्कोप काफ़ी वाइड स्कोप है। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत के नाम रहा। 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल दोनों देश 1-1 से बराबरी पर हैं। मंगलवार को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड की टीम टी20 सीरीज के तीसरे मैच में एक बार फिर आमने सामने होगी। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को करारी मात दी थी, वहीं भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए दूसरे मैच को शानदार तरीके से अपना बनाया। हालांकि शीर्ष क्रम में लोकेश राहुल की फॉर्म अब भी भारत के लिए चिंता का विषय है। दूसरे टी20 में विराट कोहली ने 2 युवा खिलाड़ियों ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मौका देकर सबको चौंका दिया था। ईशान किशन ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया, वहीं सूर्य कुमार को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया था। माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों को इस सीरीज में और मौके दिए जा सकते हैं। वहीं कप्तान विराट कोहली का भी फॉर्म में वापस आना भारतीय खेमे के लिए राहत की खबर है। इंग्लैंड की बात करें तो दूसरे टी20 मैच में मार्क वुड की कमी टीम को खली। मेहमान टीम भी अपनी बल्लेबाजी क्रम में कुछ परिवर्तन कर सकती है। बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी में प्रमोट किया जा सकता है। ऋषभ पंत और ईशान किशन को रोकने के लिए इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट मोइन अली को भी चुन सकती है। इंग्लैंड की टीम अपनी फील्डिंग पर भी खासा ध्यान देना चाहेगी, जो उन्हें दूसरे मैच में महंगा पड़ा था। दोनों ही टीम पिछले काफी समय से टी20 सीरीज में विजय के रथ पर सवार हैं। ऐसे में अब देखना रोचक होगा कि ये मैच जीतकर कौन सी टीम सीरीज में फिर से बढ़त हासिल करती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज के बाकी के 3 मुकाबले दर्शकों के बगैर खेले जाएंगे। इस सीरीज के सारे मैच मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं। इसी स्टेडियम में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम 2 मैच भी खेले गए थे।
बीसीसीआई और गुजरात क्रिकेट संघ ने T20 सीरीज के बाकी के 3 मैचों के बगैर दर्शक आयोजित होने की पुष्टि की है। मैचों के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामले के कारण यह फैसला लिया गया है। अब तक स्टेडियम में 50% दर्शकों को आने की अनुमति हासिल होती थी। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खेल समाचार मुकेश शुक्ल के साथ। नमस्कार। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, पवित्र नर्मदा का कलकल पानी, चिल्ड्रंस पार्क की अटखेलियां, जंगल सफारी का अनूठा रोमांच, रोज खिलते अद्भुत रंग बिरंगे फूल। देखिए विशेष कार्यक्रम केवड़िया दर्शन, एक अनूठा अनुभव, सिर्फ डीडी न्यूज पर 18 मार्च शाम 7 बजे एवं रात 10:30 बजे। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज 1-1 से बराबर सीरीज के बाद दोनों टीमों की कोशिश इस मैच को जीतकर बढ़त हासिल करने की होगी। रोहित की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी।
बिना दर्शकों के खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीसीसीआई ने लिया फैसला। इंग्लिश प्रीमियर लीग के अवे मुकाबले में लिवरपूल ने वॉल्वरहैम्पटन को 1-0 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को रखा जिंदा। वहीं बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा में शानदार प्रदर्शन करते हुए हुएस्का को 4-1 से हराया। चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 16 के दूसरे लेग में आज देर रात इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का सामना घरेलू मैदान पर जर्मन क्लब बोरुसिया मönchengladbach के साथ होगा। वहीं रियल मैड्रिड की कोशिश अटलांटा को हराकर अंतिम 16 में दूसरे लेग में जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की होगी। और खबर विस्तार से सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत के नाम रहा था। 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। मंगलवार को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड की टीम T20 सीरीज के तीसरे मैच में एक बार फिर आमने सामने होगी। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत को करारी मात दी थी। वहीं भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए दूसरे मैच को शानदार तरीके से अपना बनाया। हालांकि शीर्ष क्रम में लोकेश राहुल की फॉर्म अब भी भारत के लिए चिंता का विषय है। दूसरे T20 में विराट कोहली ने 2 युवा खिलाड़ियों ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मौका देकर सबको चौंका दिया था। ईशान किशन ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। वहीं सूर्य कुमार को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया था। माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों को इस सीरीज में और मौके दिए जा सकते हैं। वहीं कप्तान विराट कोहली का भी फॉर्म में वापस आना भारतीय खेमे के लिए राहत की खबर है। इंग्लैंड की बात करें तो दूसरे T20 मैच में मार्क वुड की कमी टीम को खली। मेहमान टीम भी अपनी बल्लेबाजी क्रम में कुछ परिवर्तन कर सकती है। बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी में प्रमोट किया जा सकता है। ऋषभ पंत और ईशान किशन को रोकने के लिए इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट मोइन अली को भी चुन सकती है। इंग्लैंड की टीम अपनी फील्डिंग पर भी खासा ध्यान देना चाहेगी, जो उन्हें दूसरे मैच में महंगा पड़ा था। दोनों ही टीम पिछले काफी समय से T20 सीरीज में विजय के रथ पर सवार हैं। ऐसे में अब देखना रोचक होगा कि ये मैच जीतकर कौन सी टीम सीरीज में फिर से बढ़त हासिल करती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो बिल्कुल सभी की निगाहें होंगी इस मुकाबले में, लेकिन दर्शकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की वनडे T20 सीरीज के बाकी तीनों मुकाबलों में दर्शक नहीं होंगे। इस सीरीज के सारे मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। इसी स्टेडियम में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम 2 मैच भी खेले गए थे। बीसीसीआई और गुजरात क्रिकेट संघ ने T20 सीरीज के बाकी के तीनों मैचों के बगैर दर्शक के होने की पुष्टि की है। मैचों के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को उनके टिकटों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ये फैसला लिया गया है। अब तक स्टेडियम में 50% दर्शकों का आने की अनुमति दी गई थी। वहीं क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डालते हैं इस क्रिकेट रैप पर। तीसरे T20 से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है। मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने दूसरे T20 में धीमी ओवर गति के कारण टीम इंडिया पर जुर्माना लगाया है। भारतीय क्रिकेटरों पर उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। भारतीय टीम ने निर्धारित समय में 1 ओवर कम फेंका था। आईसीसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय कप्तान कोहली ने अपराध स्वीकार कर लिया है और प्रस्तावित सजा स्वीकार की, इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एंड्रयू पुटिक के नाबाद 84 और मॉर्ने वॉन विक के नाबाद 69 रन की बदौलत बांग्लादेश लीजेंड्स को 10 विकेट से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने 161 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने 19.2 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पुटिक और विक ने इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी को अंजाम दिया। दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम है। उसके खाते में 6 मैचों से 4 जीत के साथ 16 अंक हो गए हैं। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व विकेटकीपर सारा टेलर अब काउंटी क्रिकेट में कोचिंग देती नजर आएंगी। उन्हें ससेक्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में जोड़ा है। वो नए सीजन में पुरुष टीम के साथ काम करेंगी। अपने इस नए रोल को लेकर टेलर ने कहा कि ससेक्स टीम में अच्छे विकेटकीपर्स मौजूद हैं। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं उनके साथ काम करूंगी और अपने अनुभव और विशेषज्ञता का उनके खेल को और बेहतर करने में इस्तेमाल करूंगी। टेलर ने 2019 में अचानक 30 साल की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 126 वनडे में विकेट के पीछे 136 शिकार किए।